جنوبی پنجاب میں عالمی وبا کی دوسری لہر میں شدت، کورونا وائرس ایک ہی روز میں 15 افراد کی جان لے گیا۔ ملتان میں 8 اور سرگودا میں 7 افراد جاں بحق، اموات کی مجموعی تعداد 413 تک پہنچ گئی۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں کورونا کے مریضوں میں اضافہ، نشتر ہسپتال میں 18 مریضوں کی حالت تشویشناک، 5 وینٹیلیٹر پر منتقل۔ سرگودا میں مزید 63 افراد کو کورونا نے متاثر کر کے ہسپتال پہنچا دیا۔ رحیم جار خان میں 18 مریضوں میں کورونا کی تصدیق۔ بہاولپور میں بھی 15 افراد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ 48 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب۔ رحیم جار خان میں پرائیویٹ سکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کا 11 جنوری کو سکول کھولنے کا اعلان۔ پرائیویٹ سکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کا اجلاس، ضلع بھر سے پرائیویٹ سکول مالکان کی شرکت۔ چودھری وقار علی سندھو کو پرائیویٹ سکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کا ضلعی چیئرمین نامزد کر دیا گیا۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے علماء، مشائخ اور سول سوسائٹی کو متحرک کردار ادا کرنا ہوگا۔ ڈیرہ غازی خان میں علماء سمیت سول سوسائٹی سے تعاون مانگ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کی زیر صدارت اجلاس، ایم پی اے ڈاکٹر شاہینہ نجیب کھوسہ کی شرکت۔ رحیم جار خان میں زیر تعلیم طلبہ اور طالبات کا بے فارم کے حصول کے لیے نادرا آفس میں رش۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کورونا کے صورتحال کے پیش نظر بے فارم بنوانے کی تاریخ میں 31 جنوری تک توسیع کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں ایم ایس کی خالی سیٹوں پر تعیناتی کا فیصلہ۔ پنجاب کے مختلف سرکاری ہسپتالوں میں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی خالی اسامیوں پر بھرتیاں کی جائیں۔ نشتر ہسپتال میں 1 ماہ سے ایم ایس کی سیٹ خالی، 14 دسمبر تک امیدواروں کو انٹرویو کے لیے کاغذات جمع کرانے کی ہدایت۔ بی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال سرگودا میں بھی ایم ایس کی اسامی کے لیے انٹرویو ہوں گے۔ ہسپتالوں میں طبی سہولیات کی عدم فراہمی کا ذمہ دار کون؟ شیخ سعد ہسپتالوں میں 3956 ملازمین کی منظور شدہ سیٹیں، تعیناتی کی اجازت نہ ملنے کے باعث 1511 سیٹوں پر بھرتی نہ ہو سکی۔ تنخواہوں کی مد میں سالانہ 12 کروڑ 83 لاکھ روپے کی بچت۔ ڈیلی ویجز اور ایڈہاک ملازمین آئے روز تنخواہوں کے لیے دربدر بھٹکنے پر مجبور۔ ملتان سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی شہباز شریف سے ذاتی امراء میں ملاقات۔ یوسف رضا گیلانی کی قیادت میں وفد نے شہباز شریف سے والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا اور فاتح خوانی بھی کی۔ عبدالقادر گیلانی، علی حیدر گیلانی، عامر سعید انصاری اور دیگر شامل۔ ملتان میں پی ڈی ایم کا کارکن قرار دے کر تحریک انصاف کے رہنما حامد رفیع کی گرفتاری کا معاملہ۔ حکمران جماعت کے ممبر صوبائی اسمبلی سبین گل نے اسمبلی میں تحریک التوا جمع کروا دی۔ ایس ایچ او تھانہ جلال پور نے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا۔ حکومت متعلقہ پولیس افسر کے خلاف کارروائی کرے۔ ملتان سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی شہباز شریف سے ذاتی امراء میں ملاقات۔ یوسف رضا گیلانی کی قیادت میں وفد نے شہباز شریف سے والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ ملتان میں پی ڈی ایم کا کارکن قرار دے کر تحریک انصاف کے رہنما حامد رفیع کی گرفتاری کا معاملہ۔ حکمران جماعت کی ممبر صوبائی اسمبلی سبین گل نے اسمبلی میں تحریک التوا جمع کروا دی۔ ایس ایچ او تھانہ جلال پور نے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا۔ حکومت متعلقہ پولیس افسر کے خلاف کارروائی کرے۔
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सराइकी खित्ते की तरक्की में ज़ाती दिलचस्पी। जनूबी पंजाब की तरक्याती स्कीम्स का 3 साला मंसूबा मांग लिया। तमाम कमिश्नर से तरक्याती स्कीम्स की तफसीलात तलब। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने मुल्तान की तरक्याती स्कीम्स का प्रपोजल मियांवाली के काश्तकारों की सुनी गई। 50,000 एकड़ ज़रे रकबे को नहरी पानी मिलेगा। माछीवाला, समंदवाला और तरीखेल इरीगेशन स्कीम की नई मशीनरी के लिए 33 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। एक्सियन इरीगेशन समर इकबाल चिश्ती का कहना है कि टेंडर के बाद काम तरजीही बुनियादों पर शुरू होगा, जो जून 2021 तक मुकम्मल किया जाएगा। कमिश्नर मुल्तान का पब्लिक स्कूल की अपग्रेडेशन बारे अमली इकदाम। जावेद अख्तर महमूद ने गर्ल्स ब्रांच में कैफेटेरिया का संगेब बुनियाद रख दिया। 6.7 मिलियन की लागत से 10 मरले पर कैफेटेरिया की तामीर जारी। इंतजामिया को 6 माह में मंसूबा मुकम्मल करने का टास्क भी सौंप दिया। सिंध में मुबैना पुलिस मुकाबले में 5 सराकी मजदूरों का कत्ल। लियाकतपुर तहसील बार में काम चोर हड़ताल जारी। वकला अदालतों में पेश न हुए। सदर बार जाम आजम ने कहा, सराइकी कौम पुरअमन कौम, मीठी बोली वाली कौम है। सिंध पुलिस ने जुल्म की मिसाल रकम कर दी। कार्रवाई न करने पर हड़ताल का दायरा वसी करने का इंदिया दे दिया। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान में आला अफसरान की तैनाती चैलेंज बन गई। 19वें स्केल के डायरेक्टर हार्टिकल्चर, मार्केटिंग और इंजीनियरिंग की मुस्तकिल तैनाती न हो सकी। डिप्टी डायरेक्टर मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग और फाइनेंस और एडमिन की असामियां भी खाली। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर शेर चट्टा इन एक्शन। सहूलत बाजार में ग्राम फरोशी पर 12 दुकानदारों को जेल भिजवा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। तरक्याती मंसूबों को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बरामदात में इजाफे के दावे ही रह गए। कपास की बरामदात कीमत में 10% खसारे का सामना। बहावलपुर में पाकिस्तान कॉटन डैनर्स एसोसिएशन ने अदादोशुमार जारी कर दिए। कपास की पैदावार 37% कम रिकॉर्ड। गुज़श्ता बरस 74,47,544 गांठ कपास पैदा हुई। रवां बरस 46,48,092 गांठ कपास तैयार की गई। जॉइनिंग ऑपरेशनल फैक्ट्रीज की शरह भी 21% कम रही। कपास की फसल पर बीमारियों का कंट्रोल इंतहाई अहम है। पेस्ट मैनेजमेंट से ही काश्तकार फसल से मुनाफा हासिल कर सकता है। मुल्तान में सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कॉटन कैलेंडर पर काम शुरू कर दिया गया। ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान, IUB और महकमा ज़री तहकीक के माहिरीन समेत मुख्तलिफ शोबाजात से ज़री माहिरीन की शिरकत। बहावलपुर में तरक्की के मुंतसिर असातिज़ा के लिए खुशखबरी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने 156 असातिज़ा को 17वें ग्रेड में तरक्की दे दी। 90 खवातीन PhD असातिज़ा को EST बना दिया गया। बहावलपुर महकमा तालीम ने 5 जूनियर क्लर्क्स को सीनियर और 4 सीनियर को असिस्टेंट बना दिया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मुलाकात। ख्वाजा सलाहुद्दीन ने चैम्बर के वफ्द की क़यादत की। कमिश्नर की ताजरों के वफ्द को तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वफ्द की शजरकारी मुहिम पर कमिश्नर को मुबारकबाद। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ऑफिस में शेख-उर-नोश की कीमतों के तयन के लिए इजलास। नान, रोटी, दालें और गोश्त की कीमत में 1 रुपए की कमी। खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल बुख्तियार इस्माइल का आम मार्केट और सहूलत बाजार का दौरा। शेख-उर-नोश की कीमतों का जायजा लिया। सब्जियों की कीमतें कम करने की हिदायत। सेक्रेटरी हाउसिंग मुल्तान लियाकत अली चट्टा का डेरा गाजी खान का दौरा। सब्जी मंडी, फ्लोर मिल्स और सहूलत बाजारों का विजिट किया। शेख-उर-नोश सब्जियों, फलों और आटे के मयार और कीमतों का जायजा लिया। कहा, सराइकी अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास शराजी का एहसास कफालत सेंटर कबीरवाला का दौरा। एहसास कफालत सेंटर में इंतजामात का जायजा लिया गया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर की खिदमात को सराहा गया। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, खवातीन की तकरीम को मलहूज खातिर रखते हुए एहसन तरीके से रकूम मुहैया की जा रही हैं। उच्च शरीफ में नहर पंचनद केनाल पर वाक़े पुल 82,000 टूट फूट का शिकार। पुल की हालत रोज बरोज खराब होने लगी। किसी भी वक्त सानिया का खदशा। उधर मुल्तान में क्रीम टाउन की सड़क भी खस्ता हाल।
शहरियों को मुश्किलात, इंतजामिया से नोटिस लेकर मसला हल करने का मुतालबा। दुनियापुर में मेन रोड पर स्ट्रीट लाइट खराब, जगह जगह अंधेरा छा गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, पुलिस के दफातर, मैपको ऑफिस, सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे तारीकी में डूब गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर लोधरा और असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर से रोड की स्ट्रीट लाइट्स दुरुस्त करने का मुतालबा। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में पीपल्स पार्टी के 53वें यौम तासीस की तकरीब, पीपल्स लॉयर्स फोरम की जानिब से केक काटा गया और पार्टी तराने पर भंगड़े डालकर खुशी का इजहार किया गया। जिले कचहरी में क्लर्क्स बार की जानिब से भी केक काटा गया। सदर जनूबी पंजाब पीपल्स लॉयर्स फोरम शेख गियासुल हक, फयाज भट्टा, आसिम परवेज समेत दीगर की शिरकत। जनूबी पंजाब में अद्वियाती पौधों की काश्त का प्रोजेक्ट जारी। पहले मरहले में मुल्तान, खानेवाल और बहावलपुर में 5 अकसाम के अद्वियाती पौधों की काश्त की जाने लगी। डिप्टी डायरेक्टर फ्रूट एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट जमील खौरी का कहना है कि अलसी, तुलसी, अजवाइन, अस्पगोल और कलवंजी की काश्त हो रही है। काश्तकार अद्वियाती पौधों से काश्त से बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। रहीम शाह खान में मट्टी के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद। FFC के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार में कौमी और बैनुल अक़वामी ज़रे माहिरीन की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। किसानों को जमीन जरखेज बनाने के लिए जदीद तरीकों के बारे में आगाही दी गई। ख़वातीन और बच्चों के साथ बदसलूकी और जिनसी ज्यादती के बढ़ते वाक़यात। चेयरपर्सन शेल्टर होम दारुल अमान शाहिद महमूद इंसारी की समाजी रहनुमाओं तस्नीम कोकब और गजल गाजी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ख़वातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई कानून साज़ी करे, बच्चों को हरासा करने और जिनसी तशद्दुद से मुतालिक कानूनी और इखलाकी तरबियत दी जाए। ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। सेकेंड सेमेस्टर सेशन के सिंगल फेज के साथ दाखिला जमा कराने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर मुकर्रर कर दी गई। डबल फेज के साथ दाखिला जमा कराने की आखिरी तारीख 22 दिसंबर होगी। 3 दिसंबर स्पेशल अफराद से इजहार यकजहती का दिन। मुल्तान, डेरा गाजी खान, रहीम शाह खान, दुनियापुर, खानेवाल समेत जनूबी पंजाब भर में रैलियां और सेमिनार। नाबीना बच्चों ने स्पेशल पर्सन्स के हक में तकारीर और नगमे पेश किए। केक काटा गया और तहाइफ भी तकसीम। डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शरासी, CO एजुकेशन बहावलपुर, जहूर अहमद चौहान, चेयरपर्सन सादिया करमानी, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल एजुकेशन के सरबराहान, असातिज़ा, समाजी रहनुमाओं और ब्लाइंड पर्सन समेत दीगर की शिरकत। और मुल्तान में मेन स्ट्रीम एसोसिएशन की जानिब से मासूर खवातीन के लिए कुकिंग कंपटीशन, बिरयानी, कौरमा, चिकन कढ़ाई, पकोड़े और दीगर डिशेस तैयार। मासूर खवातीन ने मजे मजे के पकवान तैयार किए। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए।